Hi students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel. You're a mathematics teacher. So how are you? I'm fine and hope you are all fine. So in this lecture, we will discuss some questions from the three-dimensional geometry. And in the last lecture, we had solved different questions from the NCERT 11.2 exercise and straight line in space regarding the angles between the lines, perpendicularity and the parallel lines. Okay, so this type of questions are very important for the board exams, and each year at least one question is to come from this parallel and the perpendicular lines property. Okay, so this straight line in space chapter is going to be very important for the board exams as well as for the entrance exams as well. Okay, so today we will solve some questions from the NCERT 11.2 exercise, which are most important questions from the straight line in space chapter. Okay, so if you check the previous year questions, you can see at least one question is to come from this today's topic. Okay, so just very important concepts. And remember one thing, just the NCERT each and every questions are very important. No, so no particular one question is important for the board exams. Whatever the questions are given in the exercises, in the NCERT exercises, each and every questions are most important. No, तो ये कोई नया तो चीज तो है नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम 3D we will solve some extra questions also, and after completing this NCERT book we will solve different questions from the R.D. Sharma book. Okay, so it is this, actually this three-dimensional geometry is very important chapter. So if you want to gather more and more knowledge, then you will have to follow some actually reference books. Without solving the reference books questions, I think you can't actually gather the much more knowledge regarding any topic, regarding any chapter as well. Okay, so चलो without wasting our time, just start करते हैं. ओके, जैसे हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, ठीक है। क्वेश्चन ही है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी 11.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर व्हिच द लाइंस, दो लाइन दिया गया है, दो लाइन दिया गया है, और यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. ओके, टू लाइंस, गिवन लाइंस, यहाँ पर लिख लो गिवन लाइंस, और एनसीईआरटी बुक्स तो सबके पास ही है. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12, मैं क्वेश्चन नंबर बोल के जा रहा हूँ, जस्ट यू कैन सी द क्वेश्चन. ओके, गिवन लाइंस क्या है, 1 minus x by 3, 1 minus x by 3, then 7y minus 14, 7y minus 14 by 2p, 2p equals to z minus 3, z minus 3 by 2, ठीक है। और the second line is 7 minus 7x by 3p equals to y minus 5 by 1, 6 minus z by 5, ठीक है। ये दो लाइन आर ए ट्राइंगल, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्वेश्चन में ये है, इफ दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। ये आपको निकालना है. तो perpendicular, they are, these two lines are already perpendicular, that means you can use the perpendicular lines property, ठीक है। So now the question is, when the two lines are perpendicular, कब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन जो है यहाँ पर, दिस टू लाइंस नीड टू बी फॉलो. ओके,
So the condition is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0 होना चाहिए. अगर 0 हो गया that means these two lines are perpendicular. Now the question is यहाँ पर ये A1 A2 ये सब क्या है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है? These are all the direction ratios of the given line. डायरेक्शन रेशियोज होता है लाइंस का. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर. अब ये जो दोनों लाइंस दिया गया है, ठीक है ना, ये दोनों लाइंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में है. देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन मतलब दिखने में कैसा होता है? x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन बाई सी. ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, फ्रॉम 1 आ जाओ, 1 माइनस एक्स बाई 3, 7y बाई 7y माइनस 14 बाई 2p और इधर z माइनस 3 बाई 2. ये है फर्स्ट लाइन. तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो कौन सा होता है? जो डिनोमिनेटर में होता है ना, ए बी सी. तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है? 3, 2p एंड 2. ठीक है ना, इफ यू कंपेयर दिस टू लाइंस, हाँ, डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, 2p एंड 2. एम आई राइट? नो, these are not the direction ratios of the line because the straight line, it is not in the standard form. Standard form में नहीं है ये line. We need to get the standard form for this particular line. Now you can ask me the question, sir, why it is not in the form of why it is not in the standard form, and how do you know that this line is not in the standard form? Okay, कैसे जानते हैं आप? यहां पर ये दोनों को कंपेयर करिए. सबसे पहले तो ये है x y z फर्स्ट में रहना पड़ेगा, फर्स्ट में रहना पड़ेगा. यहां पर है क्या? देखिए ये x बाद में चला गया, x फर्स्ट पोजीशन में रहना पड़ेगा. ये सब x y z, ठीक है, गया. x y z के साथ कोई भी कोफिशिएंट्स यहां पर नहीं रहेगा. देखो यहां पर तो कोफिशिएंट्स 7 आ गया. ठीक है, कोफिशिएंट्स नहीं रहना पड़ेगा. Actually these coefficients are not permissible to be here with the variables x y z. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं उसको. देखिए तो ऐसे लिख सकते कि नहीं, x माइनस 1 बाई माइनस 3 इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर 7 कॉमन लूं, y माइनस 2 बाई 2p. ठीक है, और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये ठीक ही है. ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 1 बाई माइनस 3 एंड y माइनस 2 बाई ये 7 को क्या करें, वो देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2p बाई 7. अगर मैं उसको फ्रैक्शन चेंज करूँ तो रेसिप्रोकल होके तो जाएगा. तो यहाँ पर z माइनस 3 बाई 2. लो यहाँ पर अभी now you have got the direction ratios. now direction ratios क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? -3, then 2p by 7, okay, then z minus 3 by 2. These are all the direction ratios of the first line. Similarly, you can find the direction ratios of the second line also. Okay, so यहाँ पर लिखो from 2, 7 minus 7x by 3p, y minus 5 by 1, 6 minus z by 5. ठीक है, तो यहां पर देखो ये भी फॉर्म में तो है नहीं, फॉर्म में तो लाना पड़ेगा. देखो यहां पर कैसे लाएंगे, 7x माइनस 7 बाई 3p, माइनस होगा सामने क्योंकि ऊपर मैंने चेंज कर दिया. इधर y माइनस 5 बाई 1 और इधर z माइनस 6 बाई माइनस 5. तो यहां पर क्या होगा रे भाई, x माइनस 1, ऊपर एक 7 कॉमन आता है, देखो 3p बाई 7 होता है, ये तो आप लोग समझेंगे ही. ठीक है, y माइनस 5 बाई 1
or the z minus 6 by minus 5. Now you have got the standard form of the straight line. Now you can consider the direction ratios as minus 3p by 7, 1 and minus 5. तो यहाँ पर लिखो डायरेक्शन रेशियोज आर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, माइनस 3p बाई 7, देन 1, देन माइनस 5. तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मिल गया. तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज जो है ना, ये a1 b1 c1 होता है भाई, और ये a2 b2 और c2 होता है. तो यहां पर मतलब आप अभी ये चीज लिखिए, सिंस two lines are perpendicular, then क्या होता है, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. a1 a2 that means ये देखिए आपके सामने है a1 a2, तो -3 into minus 3p by 7 plus b1 b2 that means 2p by 7 into 1 z minus 3 by 2 into minus 5 equals to 0. a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 because these two lines are perpendicular. So that means these two lines must satisfy the perpendicular lines property, and that's why you have written this line a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. है कि नहीं, कितना सुंदर है. that means ये सब बहुत easy questions हैं. Okay, that means unnecessarily all the students, maximum number of students used to be very much scared about this three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry सीखने के लिए just you have to be very much conscious in every steps. Okay, little bit small concepts will be introduced, and you need to remember these concepts. You need to remember these my words, and after that, after assembling all the actually all the words and all the topics and all these things, you will have a clear concept regarding the three-dimensional geometry. Okay, so just remember this thing. तो यहाँ पर क्या होगा, -9p by 7 -9p by 7 plus 2p by 7, और इधर क्या होगा 5z minus, अच्छा ये तो -5 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा -5z minus plus 15 by 2 equals to 0. ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, है कि नहीं. एलसीएम तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 14 ही होगा, है कि नहीं, 14. तो ये देखो 2 minus 18p, यह होगा प्लस 4p, और यहाँ पर होगा -35z plus 105 equals to 0, right. तो यहाँ पर -18 और +4 that is -14. -14 इधर तो होगा, मुझे लग रहा है कि -49p plus 105 equals to 0. That means यहाँ पर तो p का वैल्यू तो मुझे लग रहा है कि 105 by 49. ठीक है, अब 7 से काटेंगे, यहाँ पर 7, that means 15 by 7 आ रहा है आपका p का वैल्यू. 15 by 7 किसका वैल्यू आ रहा है, p का वैल्यू आ रहा है. ठीक है, ठीक है ना. तो ये that means by this process you can follow this perpendicular lines and the parallel lines property questions. Okay, very important and very conceptual also. Okay, so today we will discuss the last topic of the straight line in space, and that is the shortest distance between the lines. Shortest distance between the lines. Just give the heading shortest distance between the lines.
शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम से कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब लाइंस स्क्यू लाइंस भी हो सकता है, पैरेलल लाइंस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखो इफ टू लाइंस, इफ टू लाइंस, अगर दो लाइन का इक्वेशन आपके पास दिया गया, इफ टू लाइंस x माइनस x1 बाई a1, हाँ, फिर उसके बाद y माइनस y1 बाई b1, फिर उसके बाद z माइनस z1 बाई c1 एंड x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, इधर z माइनस z2 बाई c2। अगर ये दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस ये पैरेलल नहीं है, दे आर स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस, ठीक है, स्क्यू लाइंस। दैट मींस ऐसा एक लाइन होगा और सपोज ऐसा एक लाइन होगा, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, दैट यू कैन सी क्लियरली, यू कैन सी इन द फिगर। Then the shortest distance will be just like that. When the distance will be minimum, that will be the shortest distance. That means here, I think the distance will not be shortest. Okay, shortest distance वही होगा जो एकदम nearest points के बीच distance होगा. That means जो perpendicular distance होगा. Perpendicular distance ही shortest distance होता है. अब ये दोनों लाइन जहां पर perpendicular हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, perpendicular distance आप निकाल सकते हैं, तभी तभी ये मतलब एक शॉर्टेज डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्यू लाइंस, ये दोनों लाइंस को बोला जाता है स्क्यू लाइंस, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी, डी इक्वल्स टू b1, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, ऊपर वेक्टर साइन दे दो, b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2, उसको ब्रैकेट में रखो, डॉट a2 माइनस a1, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ये देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, और कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे तो यही यही है, इतना बड़ा साइज हो जाएगा, बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। इसलिए वेक्टर फॉर्म कोशिश करना है, वेक्टर फॉर्म में ही उसका डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। डिवाइड बाई, डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है, और ये पूरा होल मॉड में रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने कार्टेशियन फॉर्म लिया है और यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म का भी फॉर्मूला है भाई, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म का भी फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, लेकिन ये साइज इतना बड़ा है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म से यहाँ पर और टू लाइंस, टू लाइंस, देखो पहला लाइन क्या है, आर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, और दूसरा लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन रहे वेक्टर फॉर्म में, तो ये तो डायरेक्ट आपको यही यूज करना है। अब कार्टेशियन फॉर्म दिया जाए, then why should I use, why that means how can I use this vector form, because it is in the Cartesian form. So at first we need to convert this equation in the vector form, and after that we'll have to use this formula, ठीक है। बट वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला ही आप लोग थोड़ा यूज करिएगा, क्योंकि ये छोटा साइज में छोटा है और देखने में भी सुंदर लगता है, ठीक है। और मॉड साइन, ये जो होल मॉड है, क्योंकि यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस शुड बी positive, and that's why we are using this mod. Okay, so unfortunately if you will get the negative sign with the distance part, then this mod will convert it into positive value. Okay, ठीक है। तो ये है shortest distance between two skew lines, मतलब जो पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, वो दोनों लाइंस के बीच कैसे आप डिस्टेंस निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
आराम से, ठीक है। क्वेश्चन कर लो एक, लो लिखो फाइंड, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक कार्टेशियन फॉर्म का कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का करने से क्या होता है, दोनों फॉर्म कवर हो जाएगा, कार्टेशियन का भी कवर हो जाएगा, वेक्टर का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 15, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, between the lines, between the lines, ठीक है। लाइंस क्या क्या है, x प्लस 1/7, x प्लस 1/7 इक्वल्स टू y प्लस 1/-6 और इधर z प्लस 1/1, ठीक है। एंड दूसरा है x माइनस 3/1 और इधर y माइनस 5/-2 एंड z माइनस 7/1। ये दोनों लाइंस हैं और दोनों लाइंस के बीच आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों लाइंस को जो है ना आपको किसमें कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइंस ऑफ द गिवन लाइंस, वेक्टर फॉर्म, इसका तो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट शॉर्टकट रूल्स मैंने सिखाया है ऑफ द गिवन लाइंस। सबसे पहले आपको ये देखिए पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर, ये देखिए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। देखते हैं यहाँ पर x1 y1 z1, यहाँ पर x1 y1 z1 क्या क्या है, x1 इक्वल्स टू -1 होगा, देखो y1 यहाँ पर -1 होगा, देखो z1 यहाँ पर भी -1 होगा, देखो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, देखो -1 होगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर जो पॉइंट्स लेके वेक्टर बनाना है उसको क्या नाम देना है, ए वेक्टर। ए वेक्टर इसको a1 नाम दे दो, क्या होगा -i कैप -j -k, एम आई राइट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट तो -1 है। और a2 क्या होगा, a2 देखो यहाँ पर, वो देखो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, दैट इज 3i प्लस 3i प्लस 5j प्लस 7k, राइट, हो गया। फिर आ जाओ b1 में, b1 वेक्टर क्या होगा, b1 तो मतलब डायरेक्शन रेशियो, ये तीनों लेके, ठीक है ना। तो क्या होगा 7i माइनस 6j और इधर प्लस k। अब b2 वेक्टर क्या होगा, b2 वेक्टर क्या होगा, ये तीनों लेके डायरेक्शन रेशियो, तो i माइनस 2j प्लस k। बस यहाँ पर सब कुछ मिल गया, देखो a1 a2 b1 b2 ये सब कुछ मिल गया। नाउ यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब स्टेटमेंट मारो, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, ठीक है। तो लिख लो, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फॉर्मूला ये यूज करो, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब आगे ना, जस्ट ऐसे ही आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए आपके पास, a1 b1 a2 b2 ये सब का मतलब वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो हम लोगों ने लिख लिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर b1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए b1 है b2 है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए और कुछ नहीं है, जस्ट आपको डिटर्मिनेंट यूज करना है i j k। अब b1 का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1 और 1 -2 1, लो ये है b1 क्रॉस b2।
और डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने तो किया ही है पहले, है कि नहीं? तो एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज कर दो, क्या होगा, I that means -14 -1 +6, ठीक है। फिर -j 7 -1 प्लस के -14 के है ना, ना ये तो शब्द I -6 +2, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको करेक्शन करो, ये होगा, ये और ये कैंसिल है ना, -6 +2 -6 +2, ठीक है। हाँ, फिर के का क्या होगा, -14 +6 -14 +6, तो बस निकाल लो, मतलब यहाँ पर -4i, फिर -6j, फिर -8k, लो b1 क्रॉस b2 मिल गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, a2 - a1 का वैल्यू निकालना है, तो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a2 - a1, एकदम सिंपल है, इसमें मतलब ऐसा कोई टास्क वाला तो पार्ट है तो नहीं, ठीक है ना। तो a2 - a1 निकाल लो, a2 - a1 क्या होगा उसका वैल्यू, a2 भी पता है, a1 भी पता है, मतलब 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस a1 ये है, ठीक है, a1 का वैल्यू बिठाओ, क्या होगा, -i -j -k, तो यहाँ पर 3i, ठीक है, 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस i प्लस j प्लस k, so that means 4i प्लस 6j प्लस 8k, लो a2 - a1 निकल गया। नाउ निकाल लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब तो है नहीं कुछ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, b1 क्रॉस b2, फिर डॉट प्रोडक्ट होता है a2 - a1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, हर एक के ऊपर वेक्टर साइन यूज होगा, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर ऑल वेक्टर्स, और होल मॉड यहाँ पर एक होगा। नाउ प्लॉट द वैल्यूज, अब यहाँ पर सब वैल्यूज यूज कर दो, नाउ यू विल गेट द शॉर्टेज डिस्टेंस, वैल्यूज बिठा दो और आराम से आंसर निकाल लो, ठीक है, ठीक है ना। लो यहाँ पर b1 क्रॉस b2 क्या है, -4i -6j -8k, ठीक है, डॉट a2 - a1 का आंसर क्या है, 4i प्लस 6j प्लस 8k, और मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, मतलब b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, तो क्या होगा, -4 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर एंड -8 होल स्क्वायर रूट, बस हो गया, होल मोड तो है ही, तो इसके यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग जानते हैं, सेम को मतलब आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट के बीच मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, दैट मींस -16 फिर -36 फिर -64 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रूट क्या होगा, 16 फिर 36 फिर 64, होल मोड तो है ही, बस, तो यहाँ पर क्या होगा, 64 और 36 100 116 माइनस 64 और 36 100 116, यहाँ पर भी रूट 116 है कि नहीं, मॉड है, मॉड है, तो माइनस साइन तो चला जाएगा, और इसके इसको काटेंगे तो यहाँ पर रूट 116
6 आएगा यूनिट। ठीक है, तो ये होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट यहाँ पर आप B1 और B2 का वैल्यूज निकालेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद और है क्या, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए 11.2 एक्सरसाइज में तो ये सब और मतलब क्वेश्चन नंबर ये तो हम लोगों ने 15 किया है अभी, 16 17 सब ये एक ही टाइप का है कि नहीं। तो आप लोग मुझे ये करके जो है ना दिखाएंगे शॉर्टेज डिस्टेंस वाला, और स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इज कंप्लीटेड। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द प्लेन, ओके, द प्लेन चैप्टर फॉर 3 dimensional geometry। okay, so very important and little bit tricky also, because this uh, plane means what, एक surface, 3 dimensional surface जो ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, मतलब मूव कर सकता है इन 3 dimensions, that's why it is 3 dimensional plane। अब प्लेन लेके हम लोग डील करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेके डील किया था और प्लेन लेके डील करेंगे अभी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस। बाय एंड जय हिंद।